ناظرین السلام علیکم۔ 1947 انڈس ڈائریز کی طرف سے خوش آمدید۔ موجود ہوں میں ایک بزرگ کے ساتھ کہ جو 1947 میں انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو آئیے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ بابا جی اپنا نام بتائیں جی۔ میرا نام حاجی شوکت قریشی ہے جی۔ اچھا، پیچھے آپ کا انڈیا میں کون سا علاقہ ہے جی؟ پیچھے انڈیا میں دلی کے قریب ایک گنگا رام کی حویلی ہے جسے ڈابڑا کہتے ہیں، ڈابڑا راجستھان میں ہے۔ اچھا بابا جی، جس ٹائم یہ 1947 میں پارٹیشن ہوئی تھی، تقسیم ہوئی تھی، ہندوستان پاکستان بنا تھا، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی جی؟ عمر میں شادی شدہ تھی، 25-26 سال کا تھا جی۔ اور اچھا، تو وہ جو آپ کا گاؤں ہے دابڑی آپ بتا رہے ہیں نا؟ ہاں، ڈابڑا ڈابڑا، اس کے ساتھ اور کون کون سے گاؤں تھے جی؟ ڈابڑا راجپوتاں کا ایک شہر تھا، منگالی، جس میں سارے راجپوت، منگالی ہاں جی۔ اور گنگوا وہ بھی راجپوتاں کا۔ ہمارا ڈابڑا یہ سارا ہندوؤں کا، صرف ہمارا ایک گھر مسلمانوں کا تھا۔ یہ سارا ہندوؤں، گنگا رام کے ولی لحال سنگھ مشہور ہے ضلع ہسار کے اندر، لحال سنگھ ڈابڑے والا، وہ سرکاری ملازم بھی تھا، فوج وغیرہ کا کوئی بڑا افسر تھا۔ 4-5-10 گاؤں تھے اس کے، بہت بڑا تکڑا ہندو تھا لحال سنگھ ڈابڑے والا۔ تو ہم جب یہ انڈیا پاکستان بنا تو بیکانیر والوں نے، ریاستی بیکانیر والوں نے، انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا، کسی آدمی نے نہیں کہا، بیکانیری نے کہا تھا راجا نے کہ میری حدود میں آ جائے تو قتل و غارت بند، چاہے ہندو ہو مسلمان ہو۔ تو جتنے راجستھان کے مسلمان تھے مر گئے زندہ اس راجستھان اس ایریا میں داخل ہوئے۔ 15-20 دن کے بعد پھر نور بہادر ہے، جس سے پرانے زمانے فقط بہادرہ بولتے ہیں، ویسے انگریز آنے کے بعد اسٹیشن بنا، بڑا بنا نور، وہ پھر ریل گاڑی چلتی تھی اور تو ٹرافک نہیں تھے اس زمانے میں، ویل، گھوڑا، ٹانگا، گدا گاڑی، بیل گاڑی یہ تھی۔ تو ریل گاڑی چل کر پھر ہمارا قافلہ ملتان آیا، اور ریل گاڑی کے اندر لاشیں بے شمار، وہ جو سکھ لوگ، سردار لوگ گاڑی میں مار رہے ہیں، کوٹ رہے ہیں، کوئی چھوٹے بڑے کی قدر نہیں۔ لیکن شاید مسلمانوں نے کہیں مارا ہوگا، لیکن ہم تو مار کھا کر آ رہے ہیں، مر کھپ گئے سارے۔ 3-4 جی آئے پاکستان میں، بڑے میاں بھی ادھر آ کر فوت ہیں، میرے والد صاحب، میری والدہ بھی ادھر فوت ہوئے ہیں، اور بھائی ادھر ہی مارے گئے، گم ہو گئے ویسے۔ لیکن یہ خانہ جنگی تھی، یہ شرارت اٹھی ہے۔ چھوٹو رام وزیر نہرو کا جوائی تھا، وہ احمد آباد بڑودے میں قتل کیا ہے مسلمانوں نے۔ وہ دن سے پھر یہ سٹارٹ ہو گئی لڑائی۔ تو سپیکروں میں، اسٹیشنوں پر چھوٹو رام وزیر کو مسلمانوں نے قتل کر دیا، چھوٹو رام وزیر کو مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ وہ پھر ایسا مذہبی امور کی لڑائی ہوئی ہندو مسلمانوں کی، بس اللہ دوبارہ نہ دکھائے۔ یہ ہے میاں جی۔ اس سے پہلے جب آپ یہ پاکستان ہندوستان نہیں بنے تھے، متحدہ ہندوستان تھا، مسلمان اور ہندو آپس میں کس طرح سے رہتے تھے؟ یار اس وقت تو بہت اخلاق تھا، اب تو حاجی صاحب بس مسلمانوں کچھ گلا نہیں کر سکتے۔ اس وقت تو بہت اخلاق، کیا بتاؤں، ایک دوسرے کی بہن بیٹی سمجھنی۔ زندگی میں کرپریشن جو ہے وہ ہم نے نہیں سنا، یہ جو گندے کام، گندے لڑکی بھاگنے یا بچوں کو مارنا، بمباری، صدیوں سے نہیں۔ آپ کے کوئی ہندو دوست تھے جی؟ سارے جب ہم ہندوؤں میں رہتے تھے ہندو دوست تھے۔ نام آپ کو یاد ہے؟ ہاں، رام جلال ہے، ہری رام ہے، ہریا ہے، بس یہ تھے، اب تو بھول بھال گئے۔ اچھا، یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو آپ کا گاؤں ہے نا پیچھے، وہاں کے لوگ بھی ہماری یہ باتیں دیکھیں گے جی۔ اچھا، ہاں جی، وہ کیسے دیکھیں گے؟ بس یہ ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے نا، ہاں، تو وہاں کے لوگ بھی آپ کی اس بات کو دیکھیں گے۔ ہمارے گاؤں میں ایک تیلی کا گھر تھا، ہاں جی، سادی تیلی، اچھا جی، اور ایک منیار چوڑی بناتے بیچتے، بس 3 گھر مسلمان کے اور تمام ہندو پارٹی۔ اچھا، لیکن اخلاق بہت تھا یار، کیا بتائے بس۔ اچھا، آپ کو اپنے گھر کا نقشہ یاد ہے؟ نقشہ یار میں، کون سا محلہ تھا جی آپ کا؟ نہیں محلے والا نہیں، دیہاتی گاؤں تھا محلہ، ادھر گلی، بس ویسے ہی ترخانوں والے گلی جی، بس ایسے نام ہوتے تھے اس زمانے میں، فلانے جی، ہاں تیلیوں والی گلی جی، بس ایسے۔ مسجد تھی وہاں پہ؟ نہیں، مندر تھے؟ مندر بہت، واہ، آپ کے گاؤں میں
मंदिर तो बड़े बड़े मंदिर हैं। किस मौके पे थे जी वो? इधर 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 सूरज निकलता है इस तरफ मशरक की तरफ, मंदिर बहुत थे। वो हम क्या बोलते हैं, जहाँ इकट्ठा गांव मिलकर एक जन जाने का जगह बना ले, दारा या हुजरा, तो वो बोलते हैं इथाई। इथाई बहुत बड़ी इथाई थी, किसी गरीब अमीर की बारात आए तो उधर रुके, तो वो फिर उधर बहुत बड़ा तालाब, उसके ऊपर बड़े बड़े पीपल। तो मैं तो तकड़ा था उस वक्त। लेकिन किसी माजर जिसकी गाड़ियाँ चलती हैं उस माजर से भी पूछे, इंडिया में सुकून था जब हम इकट्ठे थे, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। तो आपको जो है ना खरीदारी के लिए, जिस तरह से आप यहाँ कोटला जाम से बखर जाते हैं, बड़ा शहर है, हाँ हाँ, तो वहाँ पे आपके साथ कौन सा बड़ा शहर था जहाँ आप जाते नहीं थे? नहीं, बड़ा शहर अंसार था ना। अच्छा, अंसार 6 मील था, बैलगाड़ी में जाते थे, ऊंट पर जाते थे, बस सौदा सादा। उधर से सब्जी वाले भी आते थे, घोड़े पर लद कर सब्जी देने वाले देहातों में। हमारे से इधर मगरब की तरफ हो जाए तो बस फिर ज्यादा रेगिस्तान, ज्यादा रेगिस्तान, ज्यादा रेगिस्तान, अंधेरी बारिश हो जाए तो 1,000 गंदम की बोरी चनों की, बारिश ना हो तो जोड़ भी खुशक हो गए, कुआं भी खुशक हो गया, ऐसे। अच्छा, तो आपकी शादी किस गांव में हुई थी जी? ये डाबड़े में, डाबड़े में थे। अच्छा, डाबड़े में हुई थी। डाबड़े में। अच्छा, कभी आपको दिल्ली जाने का इत्तेफाक हुआ? नहीं नहीं, उस जमाने में यार जाती आदमी शहरों से बाहर नहीं जाते, वह डंगर चराना और आपकी फसलें बस करना, बस ऐसे था। आपके इलाके में फसलें कौन कौन सी होती थी? फसलें बस ये बाजरा ज्यादा, गंदम के मौसम में गंदम कम, और चने ज्यादा, चने ज्यादा बहुत। अच्छा, जिस तरह से चकवाल की रेवड़ी मशहूर है, डेरा इस्माइल खान का हलवा मशहूर है, आपके गांव की कौन सी चीज मशहूर थी? हमारे गांव के बैल मशहूर है, रूए जमीन के ऊपर ऐसे बैल और कहीं नहीं देखोगे, बैल अंसारी। गाय जो ये लाल रंग की गोरी गाय है, ये मशहूर थी। और अच्छा, आप हिंदुओं की खुशी गमी में जाते थे? यार कट्ठे यही वो जलाते थे तो उधर हम हटकर खड़े हैं, हम दफना रहे हैं तो वो हटकर खड़े हैं, कोई तकाजा, कोई खारबाजी, कुछ मकसद नहीं था। एक दूसरे का एहतराम करते थे? एहतराम करना बस। जब वो शादी में गए तो हमारा खाना मुसलमानों के घर होता था, हम उनको बुलाए यार दोस्तों के, तो उनका खाना हिंदुओं के घर होता था। भाई ये हमारे पैसे हैं, इनको खुआओ, ये हमारी शादी, ये तरीका था। अच्छा। ये नहीं कि उनका पका खाना कभी नहीं खाया। अच्छा, बस जब 10-20 मुसलमान हैं तो वो हिंदू भाई हैं, वो मुसलमानों के घर जाकर भाई सब ये 10-20 मुसलमान हैं, कुछ है गाय के अलावा मुर्गी खाएं, कुछ है गाय तो वैसे ही बंद है ना, बहुत जुर्म की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके जो साथ खेलने वाले थे, शायद उनके कोई बच्चे हों, तो वो आपको देख रहे होंगे? हाँ तो, नहीं खैर अब तो 100 साल की उम्र हो गई, अब तो कहा मेरे हम उम्र मर खप गए सारे। नहीं, उनके कम से कम बेटे तो देख रहे होंगे ना जी? ना देख नहीं, ये आवाज तो पहचान सकते हैं कि भाई वो फलाना आदमी का को दादा, मैं परदादा बना बैठा हूँ अगर मेरे बेटों की औलाद होती जी। अब बात ये है कि बस वो माजी आप पूछ लें। आप अपने दोस्तों के नाम एक मरतबा दोहरा दें ताकि उनके पोते देखें तो वो खुश हो जाएं जी। हाँ बस वो हमारे दोस्त यही थे ना, साथ मिस्त्रियों की दुकान थी, हम हिंदी ज़बान में खाती बोलते हैं उसे, जिसे बड़ी बोलते हो आप, तो उनका नाम खुशी मोहम्मद था। एक वो तेली है मुंशी, शायद वो इधर आए हैं कि मर गए, इंडिया में रह गए, मुंशी तेली, जिसके बेटे बदरुद्दीन मुंशी सादी के बेटे थे। बस ये 3 ही घर में हमारा तल्लक था मुसलमानों का। एक मनियार था, लिल्लू नाम। अच्छा, तो बस और अच्छा, आपको हिंदी ज़बान के कुछ लफ्ज़ आते हैं? नहीं हिंदी में, हिंदी ये उर्दू जो है हिंदी में शुमार है ना, वैसे थोड़ा थोड़ा तो बिगड़ ही जाता ना, सरगोदा और है, चकवाल और है, और ऐसे, लेकिन इतना फ़र्क नहीं है हमारी ज़बान में और हिंदी में, जैसे सिंधी है या पठान, थोड़ा थोड़ा है। हम भाई बोलते हैं, वो भैया बोलते हैं, बस हिंदी में। और क्या है, हम बाजू बोल देते हैं, वो बैना बोलते हैं, बस हम आँख बोलते हैं, वो नैना बोलते हैं, एक दूसरे को पहचानते तो है ना। अच्छा, तो लेकिन वो पूर्वी ज़बान में मिलती है हिंदी, जो असल है पूर्वी मशरक़ की तरफ इलाका पूर्व है,
जिधर ये छज्जू खान कवड़ियाला है, शालकोट के बाहर कर मेव लोग जो आए, ये पूर्व के इलाके से हैं, ये पूर्व का इलाका है जिधर मशरक निकलता है, तो उनकी ज़बान है ये नैना बैना भैया, बस ये। अच्छा लेकिन हम समझते तो अच्छा, वो दिन आपको जो है ना याद है कि जिस दिन आप अपने घर से निकले थे? हाँ याद तो है वो ना, क्या तो क्या फीलिंग्स थी, क्या महसूसात थे आपके? सामान लिया? बोलते हो ना इखलाक हिंदू, मेरे अब्बा के दोस्त ने हमें बचाया है। तो उसने कहा है कि मेरे अब्बू का नाम जमालदीन है, कि जमालदीन आज शाम को मिट्टी का तेल जलाकर आपको जलाएंगे घर। मेरे अब्बे ने कहा भाई हमारा एक घर है, जलाओ, दिन में जला दो। बोला नहीं, मैं तारीख लेकर आऊँगा दोस्तों से, जलाने नहीं दूंगा। उस राम जलाल ने लंबरदार का लड़का था, उसने उन दोस्तों को यार हम 3 दिन के बाद जलाएंगे। जब वो रात के टाइम आया तो हमारे को बोलता है कि इस दीवार को सुराख निकालो और इधर से निकलो। अंदर के दरवाज़ा जड़ा रहे, दीवा जलता रहे। फिर हम वो सुराख कच्ची दीवार से निकाल कर 9 आदमी थे और वो 22 मील चले हम पैदल रात के टाइम, 22 मील, छोटे बड़े। वो फिर बीकानेर किया, 2 दागी बीकानेर वालों ने ऐलान कर रखा था कि इधर आ जाए तो कत्लेआम बंद। तो ऐसे घर से सामान वगैरह ले लिया था? नहीं कुछ नहीं, उस अकल बताई उस हिंदू भाई ने। तो बोलो जी जो कुछ भी है भागो। आगे देखते हैं इधर आग लग रही है, इधर आवाज़ आ रही है चीखने की, इधर आग लग रही है, इधर आवाज़ आ रही है चीखने की, ये आलम था। बस उस बात रास्ते में कत्ल वगैरह तो आपने बहुत देखी थी? देखे अल्लाह के वली, देखने बस एक कुदरती जो बच गया, कुदरती चालाकी नहीं, कुदरती बच गया भाई। इधर आप जला रहे हो, इधर कर को जिंदा जा रहा है, आपकी उधर नजर है तो इधर जा रहा है, बस ऐसे बचा है। अच्छा, नहीं आपने उनको ये नहीं कहा कि हमारा सदियों से इतना अच्छा टाइम गुजरा है तो आप हमें क्यों जुल्म कर रहे हो? नहीं, अवाम मच्छर जाए, अवाम में मजहबी अमूर का झगड़ा था, वहाँ मच्छर जाए, कौन किसी के सुनता है मियाँ जी। अच्छा, आज इतने सालों के बाद कभी अपना घर याद आया? याद तो खैर मेरे आधा औलाद को तो नहीं आता, मेरे को तो आता ही है ना। जब हमारा बचपन, खेलना कूदना, बस हर एक खेल खेलना, बस याद तो आता है। ज़मीन जहाँ पैदाश नामा हो, देखो ये परिंदे हैं, सूखे लकड़ पर आलना होता है, लेकिन उस आलने की पैदाश 20 कौवे भी हो जाए वो उधर ही आकर रात गुजारते हैं, वो उनका वतन है। तो जहाँ पैदाश नामा है वो बचपन गुजरा, वो वतन होता है। एक जहन में एक बात है कि ये वतन हमारा नहीं। आप इंडिया चल जाए मुसाफरी में 8 साल मुलाजमत करें, लेकिन आपके जहन में वो वतन नहीं है। आप अंग्रेज़ों में चल जाएं, 20 साल गुजारें मुलाजमत से, जहन के अंदर ये बात रहेगी कि ये हमारा वतन नहीं है। और जिसका वतन है तो बस को वतन है, वो वतन के बाद अगर झगड़ा हो जाए, को वतन छुड़ाए, वो तो औलादाबाद। वतन एक ऐसी चीज़ है मियाँ। अच्छा, कभी ख्वाब में अपने गांव में गए आप? ख्वाब में तो बहुत दफ़ा गए, मेरे को आता है और बच्चा का ख्वाब में तो वो हमारा बचपन, जिन आँखों ने मियाँ जी देखा है ख्वाब उसका आता है। अगर आपने मदीना नहीं देखा तो ख्वाब कभी नहीं आएगा मदीने का। मेरे को मदीने का आता है, देखा है मदीना, काबा का। तो अपने गांव की कौन सी चीज़ याद आती है आज भी? बस वही, इस मौसम में हिंदुआने बहुत होते हैं, पूरे टिब्बे के अंदर हिंदुआने के बेचने वाला भी थक गया, घर वाले भी थक, कोई आए कोई खाए, छिट्टा दे देते हैं। रेगिस्तान के अंदर तो बहुत बड़े बड़े मशहूर कत्तक के तरबूज। तो ये दौर अच्छा है या वो अपने गांव वाला? ये देखो जो गरीब है उजड़ कर आया है, इसे अल्लाह ताला का रहमत नहीं है तो उसको तो बैक साइड याद आती है। और जो पीछे से आकर इधर गाड़ियां मोटरों वाले महाजर बन गए तो उनको तो कभी नहीं, वो बोलते इंडिया क्या चीज थी, कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर आपको मैं अपने साथ इंडिया ले जाऊं तो आप हमारे साथ अपने गांव देखने चाहोगे? नहीं, मेरा कोई है नहीं भैया। नहीं, कम से कम हम आपका घर खड़ा हो वहाँ पे नहीं, तो वो तो खड़ा हो वैसे की तस्वीर में। अब तो मोहब्बत कुछ इस्लाम ज्यादा दिल के अंदर आ गया। अब तो इतनी यानी बात है कि मुसलमानों के साथ बैठना उठना, चाहे वो गरीब हो हिंदू। अच्छा, हमारे हजूर से खिलाफ है तो बस ये लाइन तो नहीं। वो कह रहे हैं कि हिंदू कहते हैं कि हम जो है ना मुसलमानों का एहतराम करेंगे, मुसलमान हमारा एहतराम करें। नहीं, वो बनावटी बात है। सिर्फ सिख के तो इतबार करते हैं। सिख लोगों का एक बड़ा
इधर है वो गुरु नानक का, और उसको हमने बचा कर रखा हुआ है, तो उसकी वजह से ये सिख लोग प्यार करते हैं, लेकिन हिंदू तो नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे बारे में बहुत सारी गलत बातें हैं। हम आज भी 1947 से पहले जिस तरह इकट्ठे रहते थे ना, खुश आज भी हम अमन चाहते हैं, वो कुछ कहते हैं लोग। आवाम से मुराद नहीं है मियाँ जी, आप राजपूत के बेटे, आवाम और चीज़ें बादशाही जब चला है वो अकेलियत करार दे रहे हैं कि मुसलमान इस धरती का है ही नहीं, शनाख्ती कार्ड छीन लिए और अकेलियत करार दे रहे हैं। ये जो अब जो बादशाह बना हिंदू, जो कौन है अल्लाह जाने। हाँ जी। तो हज़ारों साल से वो धरती हिंदू मुसलमान बने, तो उन मुसलमानों को बिल्कुल फ़र्क कर दिया उन्होंने, कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आपके अगर गांव के लोग देखें और आप उनको बताएं कि मैं आपके गांव बड़ौदा का हूं, तो उनसे एंड पर क्या पैगाम दोगे जी? नहीं, वो फिर अनजान क्या दे सकता है, वो भी कहेंगे जी कौन था, उनके याद में भी हमारा बाप दादा उधर नहीं देखा, नहीं सुनी सुनाई बातों पर तो यकीन थोड़े आता है। मैं कहता रहूँ वो भी सुनने, ये तो है मेरी हम उम्र का आदमी हो, शायद कोई अल्लाह ताला ने उसको बचा रखा हो तो वो कोई तो और बात है। वो तो चलो मुझे ना पहचाने, मैं तो इधर आकर ज्यादा जवान हूँ, लेकिन मेरे बाप दादे का नाम लेते ही वो जफ्फी डालकर मिलेगा, हो ये फलाना आदमी है भाई। अच्छा। ठीक है। और आजकल के पुरुष से तो क्या होगा, अब आपका परदादा कोई जिंदा आ जाए और आपको कहे गाड़ी में परदादा हूँ, हमने तो होगा भाई परदादा होगा। हाँ जी। ये तो देखने पर मौसर है मियाँ जी, मोहब्बत टूट जाती है मियाँ जी। सक्का दादा परदादा आपने नहीं देखा, कोई एक रिश्तेदार है कराची रहता है, आप जिंदगी में नहीं गए तो उसके घर आप ऐसे महसूस बैठेंगे जैसे कोई अजनबी बैठा हो। अच्छा, आपको कोई मुहावरे याद हैं, जैसा कि होने यार बरवा के चिकने चिकने पात, ठीक है, इस तरह के कोई मुहावरे याद हैं आपको पुराने? नहीं, ऐसे ही लाइन के कुछ हों, एक दो याद हैं हिंदी। हाँ सुनाए जी। क्या समझ शायद आपको आएगी कि नहीं? नहीं, मुझे आएगी, बिल्कुल आएगी, आएगी। चिड़ियन चूंच भर ले गई, रतियन घट गयो नीर। वाह। समुंदर से अगर चिड़ी पानी उठा ले तो समुंदर कम नहीं होता, इसका ये मकसद है। चिड़ियन चूंच चुंज जी जी जी, मुझे समझ आ रही है जी। चिड़ियन चूंच भर ले गई, रतियन घट गयो नीर। पुण्य करें तो धन ना ही घटे, नेकी करने से रिज़्क नहीं घटता। पुण्य करें धन ना ही घटे, कह गयो दास कबीर, ये दास कबीर का है। अच्छा। उनके दास कबीर है, भंवस है, एक राजिया है, एक कृपालाल है, तो ये उनके देवदास से हम फकीर लोग कहते हैं। जैसे हमारी हैसियत है बुल्ले शाह है, ये गोरड़ा शरीफ वाले, पैगम्बर से अलावा ये उनकी हैसियत है। उनके बयान उनकी गिरफ्त में है और उनके बयानों में गलत बयान नहीं है। जो भी उनकी आप गिरफ्त पढ़ें, गीता पढ़ें, ऐसे ऐसे अल्फाज हैं कि उनमें कोई मुसलमानी इनकी बात नहीं है। वो वज़न दे रहे हैं कि तेने मरना है, नेकी कर, ये हिंदू है, सब कुछ ये है मुहावरे। तो एक है क्या है, अब हिंदी है शायद आपको मुझे समझ आती है जी, आप बताएं। आती है जी। एक राजिया नौकर था कृपालाल का जी, कृपालाल शायर था, तो उसने अजीत साहब हुक्का बुलाया तो कृपालाल राजे को बोलता है कि यार इसमें खुशबू आ रही है। बोले साहब मैंने तो ये जंडी नहीं, इसकी छिलके उतार कर हुक्का आग जलाइए। जंडी की तरफ देखा तो उसके साथ चंदन का पेड़ लगा हुआ। तो वो कृपालाल बोलता है मंजन घर मलियारी, मंजन घर, मलियारी कहते हैं नुकरानी को, मंजन कहते हैं साफ सुथरा, दांतन मांज ले, बर्तन मांज ले, मंजन का मैंने साफ सुथरा। अगर नुकरानी साफ अच्छे घर में नौकरी आ जाए तो उसका बर्तन पकड़ाना, बैठना, उठना और ये शहूर आ जाता है। लेकिन उसने काटी है बात कि वो तो शख्स है। मलियारी मंजन घर हो, संगत ले सुधार कर रुखा ताई राजिया। अगर संगत एक ऐसी हो तो ये दरखत है, इसने भी देखो जंडी में खुशबू पैदा कर दी। वाह 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 वाह। संगत एक ऐसी चीज है। हाँ जी। फिर उसने लफ्ज अपने आप को काटा है कि ठीक है संगत होती है, अकल का कमजोर हो तो उसको संगत क्या करेगी भाई, ऐसी है जी। ये जितनो मुड हो,
ये बोलते हैं अकल को, मुड में ना समझने वाला। ये जितनो मुड हो कोह संगत का ही करे, उसको संगत क्या करे जी, एक पागल है, भट्टे हाथ में उठाए सारी जिंदगी चम्मे में बैठाए रख। ये जितनो मुड हो को संगत का ही करे, लीले ऊपर लाल कदी न चढ़ सी राजिया। काले रंग से ऊपर क्या करेंगे आप, सफ़ेद को पीला कर से, नसवारी कर से, काले को क्या करेंगे। तो उसने कहा है कि दिमाग का कमज़ोर हो उससे संगत क्या करेगी। संगत भी तो कोई अकलदार हो, शहूर हो, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। अच्छा, वाह जी वाह 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 वाह। आपको समझाती है? नहीं, मुझे समझ आ रही थी, बिल्कुल समझ आ रही है जी। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत टाइम लिया है। नाजरीन जी, हमें रास्ते में मिले थे बाबा जी, कोटला जाम से हैं। तो बाबा जी, पाकिस्तान में जो आपके बड़ौदा गांव के हैं वो कहाँ पे आके बसे हैं जी? नहीं, मुझे तो नहीं पता। एक निशानदेही है, कोई कराची में है, वो तेली तुली या को हमारे खानदान के, कभी गए नहीं। अच्छा, सुन्नी में आया है, कोई आया, कोई पया में बर आया था, तो उधर वो मैं पहुंच नहीं उधर जाने की। अगर मेरे जहन में ये बात है, इंशाल्लाह अनपढ़ तो हूँ, नॉलेज है कि इस उम्र में किसी पुराने आदमी ना जिंदा हो तो उससे क्या मिलूँ, क्या कहूँ उसे कि मैं तुम्हारा दादा हूँ या ऐसे रहता, तो उनको यकीन होगा भाई, बढ़ जाए जी। बात तो है सामने आमने, कोई एक दफ़ा देखा हुआ तो वो बंदा पहचानता कि हो फलाना आदमी है। अगर आप राजपूत साहब दोबारा इसी गाड़ी में मिलेंगे तो खुद आपको प्यार हो, बाबा जी आ जाओ हम उधर जा रहे हैं, बैठ जाओ जी जी। जब देखा ही नहीं तो फिर क्या है। बिल्कुल जी, देखा ही नहीं तो फिर क्या है। अच्छा, और अच्छा। तो बाबा जी, आपके जो शादियां होती थी वहाँ पर खाने में क्या चीज़ मिलता था जी? नहीं, खाना गाय के अलावा सब चीज मिलती थी। अच्छा, गाय तो उधर मना है ना, सख्त उनके मजहबी उमूर है। बाबा जी, आपको कोई शेर वगैरह याद है? नहीं, शेर हिंदी का? हिंदी का ये दुए हैं, और शेर क्या है। अगर हिंदी का शेर हो तो यार आप नहीं जानते हिंदी। मैं जानता हूँ जी, मैं बहुत जानता हूँ हिंदी। आप हिंदी में कोई शेर सुना दें। यार क्या सुनाऊं? हाँ। अच्छा सुनाऊं? जी बिल्कुल सुनाए। नित उठ जी में आवे सैक, आज सजाएगी मांग मेरी। वाह। नित उठ जी में आवे सैक, आज सजाएगी मांग मेरी। जूं जूं सांझ ढले से, मर्दी जा से तांग मेरी। वाह 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 वाह। सोने बरगी काया थी, वो भी होगी रांग मेरी। नस नस में फैल गई हाजी या भांग तेरी। तो क्या समझाई? वाह 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 वाह। नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया जी। जी नाजरीन, ये जो है ना बाबा जी, मैं जा रहा था लिया की तरफ, तो रास्ते में मुझे मिले, तो इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मैं इनसे फ़ोन ले लेता हूँ, तो फिर इनके साथ फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही। तो आप एक मरतबा जो वहाँ पे दिल्ली के आपके शहर दाबड़ा के लोग देख रहे होंगे, उनको हाथ हिला दें एक मरतबा। अच्छा। और उनको दुआ भी दे दें जी, दुआ भी। अल्लाह तबारक तआला, हिंदू हो या मुसलमान हो भाई, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। बरसों से अगर ये पैगाम उधर जा रहा है, तो मैं जमालुद्दीन का लड़का हूँ, जो मिस्त्रियों वाली गली थी आखिरी स्टाफ में, हमारे घर में पीपल था, उस घर का आबादी हूँ। और मेरा नाम अब तो हाजी है, लेकिन शौकत कुरैशी नाम हूँ। 3 घर हमारे डाबड़ा में थे, एक सादी तेली का, एक लिल्लो मनियार का, एक हमारा घर। अगर कोई डावड़े में मेरे बाप का भी कोई हम उम्र का ज़िंदा है, मेरी हम उम्र का है, तो उसे मेरी दुआ सलाम लगा लो, या जो कुछ भी है प्यार लगा लो, मेरी तरफ से सलाम दुआ है। और अल्लाह ताला रहमतों में ज़िंदा हूँ। अल्लाह ताला आपके बच्चों को हयात दे। हमें उस धरती के बारे में बहुत मोहब्बत है। हिंदू हो मुसलमान हो, अल्लाह तबारक ताला की मखलूक एक ही है। फ़िरकाबाजी है, ये बाद में बनता है, आदम ज़ात बनाता है, अल्लाह नहीं बनाता। अल्लाह सूरत माउन 30 सुपारे में ये लिखा है कि मखलूक से प्यार करें, तो वो मेरा मुसलमान, वो मेरे अकीदे में है, मेरे नबी का फरमान है। और एक दफ़ा मेरे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदू भाई सुनते हो, मेरे मज़हब की बात कर रहा हूँ, मेरे वो जो बुजुर्गवार हैं जिसे हम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उनके पास असली करीबी रिश्तेदार भी बैठे थे कि या रसूलल्लाह, हमारे उनसे अच्छा कौन है? तो मेरे नबी ने ना दौलत फरमाई ना रिश्ता फरमाया, कि अच्छा वो है जिसमें इखलाक अच्छा हो। तो हमारे बाप दादे की ज़िंदगी
इंडिया में अखलाक से गुजरी है। अब भी उनकी मोहब्बत हमारे ज़मीर में है, लेकिन वो मजहबी अमूर की वजह से तो कुछ और बात बन जाती है। अच्छा, अल्लाह ताला आपको जो है ना आपके गांव के जो सफ़ेद पोश लोग थे वो किसी का नाम का याद है? नहीं वो लाल सिंह, मैं उस वक्त नहीं कोई नंबरदार या इस तरह का कोई? हाँ लाल सिंह डाबड़े वाला मशहूर है यार, डिस्ट्रिक्ट अंसार में पूछे, अगर वो फौत भी हो गया उसकी औलाद हो गई, वो तो गांव का मालिक है, जैसे ये सियाणी मियाणी है ऐसे। अच्छा, कौमें याद हैं दाबड़ा में कौन कौन सी थी हिंदुओं की? तो हिंदुआ बहुत है यार, बहुत। कोई याद है तो बता कोई दें। भी हीर भी थे, तेली भी थे, मुसलमान भी थे, जट भी थे, बाबा मूला जाट भी थे, बहुत सारे हिंदू राजपूत भी थे, बहुत बहुत मिले जो। चले चले ठीक है जी, अच्छा। हाथ हिला दें जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, वाह बे अल्लाह के वली।